हेलो स्टूडेंट सत श्री अकाल ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 24/7 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਨ ਚੋਗ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਲੈਕਚਰ 6 ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਟੂडेंट्स लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ग्रेविटेशन। जी हाँ, एक ही ਹੁੰਦੀ ਹੈ एक ही है force of attraction between two objects in the universe is called gravitation। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ force of attraction ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ force of attraction ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ gravitation। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ force of attraction ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ masses। So gravitation occurs due to the masses of the object। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ। ठीक है जी। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਂਕੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਅਟਰੈਕਟਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ towards itself। मतलब अर्थ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ because ਉਹ ਇੱਕ huge type it is known as a type of magnet। मतलब अर्थ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ अर्थ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ falling of apple towards earth ਜਿੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆ ਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਿਊਟਨ ਅੰਕਲ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਐਪਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਬ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਸੇਬ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨੀਚੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਟਰੈਕਟ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। और an example की है movement of planets around the sun at its own axis। ਹੁਣ ਦੇਖੋ अर्थ की है अर्थ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰੋਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦੇ ओरिजिनल ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਆਰਬਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬਟ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪਲੈਨਟਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਥ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਦੇ ਪਾਸੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਅਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਰਥ ਦਾ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਥ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਹ ਅਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਮਾਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਰਥ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नेक्स्ट मैं जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਦੋਂ ਨਿਊਟਨ ਅੰਕਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या बिकॉज ये लॉ न्यूटन ने दिता है इस करके ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हुण एक किंदे किंदे ते ओ कहंदा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेहड़ी है ना वो किसी अलग-अलग फैक्टर्स ते डिपेंडेंट हुंदी है। तो उन्हें क्या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, मान लो ये आ अपने कोल फर्स्ट मास है, ये अपने कोल सेकंड ऑब्जेक्ट है। मान लो एंड द m1 मास है एंड द m2 मास है, ते इन्हां दे विच जेहड़ा डिस्टेंस है वो r है। तो उन्हें क्या फर्स्ट चीज उन्हें कही इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मासेस, मतलब दो मासेस नु जदों आप मल्टीप्लाई होवेगा तो फोर्स उनदे की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जे इन्हां जो किसी भी एक ऑब्जेक्ट दा मास इंक्रीज किया तो फोर्स ऑटोमेटिकली होएगी कि इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। सेकंड चीज उन्होंने कही इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ये लाइन फिजिक्स दे विच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जिन्ने भी लॉज अपने आप एग्जिस्ट हुंदे है सारियां दे विच ओ आ वाला लॉ ओबे हुंदा है, जिहड़ा ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिहड़ा ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ इनवर्स स्क्वायर लॉ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है? ਇਹ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बिकॉज जिन्नियां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंदी भावें ओ दो इलेक्ट्रॉन दे विच होवे, दो अलग-अलग मासेस दे विच, जिन्हों ਆਪਾਂ ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिन्नियां भी टाइप ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ फोर्सेस, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਸ ਸਕੁਆਇਰ ਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਬੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन्नी घट जाएगी। देखो ये सिंपल जी ऑब्जर्व है, दो आदमी जदों आसे पासे एक दूजे दे रहंदे ने तो उन्हां च अट्रैक्शन होएगी। जो आदमी एक अमरीका रहंदा एक इंडिया रहंदा आपां नूं की पता अमरीका वाला है कौन, ते ओनू अपने अपना कुछ नहीं आता पता। तो इस करके कहंदे ने जिन्ना ज्यादा डिस्टेंस होएगा उन्ने ज्यादा ऑब्जेक्ट दे विच जिहड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी होएगी घट जाएगी। ठीक है। जे आपां इन्हां नूं इकट्ठा कर दईए तो बन जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर। हुण जदों आपां फिजिक्स दे विच या जेड़ा भी साइंस दा होर सब्जेक्ट आंदा है, जदों भी आपां कोई लॉ वगैरह निकालते हैं, जदों आ वाला साइन नूं आपां कहने आ इन साइन दा नाम हुंदा है प्रोपोर्शनैलिटी साइन। ठीक है जी। ते जदों भी इन्हूं हटावांगे तो उत्ते कोई ना कुछ एक्स्ट्रा अक्षर एक अल्फाबेट ऐड किया जाएगा। वो अल्फाबेट नूं आपां कहने आ इत्थे जेड़ा यूज करदे हुंदा है जी, इत्थे जेड़ा होएगा जी, वेयर जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जदों भी प्रोपोर्शनैलिटी दा साइन हटावांगे इक्वल टू लेके आवांगे तो उत्ते कोई ना कोई ग्रेविटेशन इत्थे जेड़ा है उन्होंने कहने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट आंदा है। इत्थे आया जी। हुण तो तुहाडे कोल एग्जाम विच की इंपोर्टेंट आ सिर्फ इन्नी को चीज, तुहानू एग्जाम विच ऊपरला कुछ भी आ सकदा है, बट जे तुहानू आ आंदा तां अपने आप ऊपरला भी आंदा होएगा। तो तुहाडे कोल एग्जाम दे विच इहदे तो रिलेटेड सब तो इंपोर्टेंट बंदे है। फर्स्ट ने आज जे मैं आखा अज दा पहला इंपोर्टेंट फार्मूला अपने को आ चुका है, वो है F = G m1 m2 by r स्क्वायर, वेयर m1 m2 की ने दो ऑब्जेक्ट दा मासेस है, r उन्हां दे विच डिस्टेंस है, g बोले तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हुण एक चीज और तुसीं याद करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, g दी कितनी वैल्यू हुंदी है, तो तुसीं आंसर याद करना है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। हुण इन्ने वड्डे एसआई यूनिट तुहानू याद रखो या ना रखो, उनका एक निक्का मेथड की है, जे मैं तो g निकाला तो g कितना हो जाएगा f, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा f दे नाल, तो f r स्क्वायर अपॉन m1 m2, मतलब f दे अपन पता ने ऐसा यूनिट की होंदे ने न्यूटन, r दे मीटर, तो की हो गया ऊपर बन गए न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, नीचे मास दे होंदे है किलोग्राम, मास की हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो किलोग्राम इनटू किलोग्राम बन गया किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है जी। जरूरी नहीं तुहानू ऐसा यूनिट आंदे ही होण, तुहानू अगर उनका बेसिक फार्मूला भी आंदा है किसी भी चीज का, तुसीं उनदे ऐसा यूनिट आपे उत्ते निकाल सकते जे। तो एंदे देखो हाल तक इंपोर्टेंट की हो गए जो एग्जाम में आना, तुसीं नाल दे नाल अंडरलाइन या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो
पहली चीज इंपोर्टेंट है आ चीज फोर्स किंदे इक्वल होंदी G m1m2/r²। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ m ਹੈ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ r n ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਆਊਗਾ। ठीक है जी, एक तो है जी बन सकते हैं आपने एग्जाम में क्वेश्चन या व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ जी या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एंड जो क्वेश्चन भी ਤੁਹਾਨੂੰ आ सकता है। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑन जिन्नी एक्सेलरेशन दे नाल जिन्नी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दे नाल कोई ऑब्जेक्ट अर्थ वाल नु अट्रैक्ट हुंदा है तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ एक्सेलरेशन ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ a ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ g ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इट इज द एक्सेलरेशन विद व्हिच object gets attracted towards earth is called acceleration due to gravity and it is denoted by small g ਤੇ n ਦੀ अर्थ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ what is the value of g on earth? Acceleration due to gravity ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9.8 meter per second square। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ SI ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ g। g बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी, नेक्स्ट हुन एंदा तुसी एक ए चीज हल्की जी एक्स्ट्रा है जो तुसी याद करनी है इंपॉर्टेंट की है अगेन जिन जेडी आपने कॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किंदे किंदे ते हुंदी डिपेंड g ते ऑब्जेक्ट दे मास ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ डिस्टेंस दा होल स्क्वायर अगेन फोर जेडी फोर्स ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਸ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ m1 m1 m2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ g ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ठीक है जी, ਤਾਂ g ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ gm/r²। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए ਤਾਂ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਆਊਗਾ तो की इफेक्ट आएगा जे r इंक्रीज करेगा तो g डिक्रीज करेगा, जे r इंक्रीज होएगा तो g की करेगा डिक्रीज बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर ऑपोजिट ने एक दूसरे दे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट जेड़ा आंदा है सब तो इंपोर्टेंट ये वाली जेड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ एक्सप्लेनेशन होने वाली है पेपर ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ इंपोर्टेंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ g। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ दे उत्ते ही इक्को वर्गा नहीं हुंदा। जे ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖੀਏ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਟ अर्थ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ सब तो इंपोर्टेंट where the acceleration due to gravity is 0 तो उनका आंसर आएगा at the center of earth या आगे जाके एक और आएगा जिन्हें आप कहने outside the earth दे outside in the outer space दे विच या earth दे बिल्कुल सेंटर ते acceleration कितनी हो जाती है और g दी वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट एक चीज सब तो एग्जाम में रिपीट होती है where g value is maximum किथे g दी वैल्यू मैक्सिमम होंदी है तो वो होंदी है at the poles। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अर्थ ਦੀ ਸ਼ੇਪ एलिप्टिकल है ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ x एक्सिस ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਏਟਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੁਏਟਰਸ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦੀ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੇ। मतलब ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਰਥ ਦਾ ਬਣ ਇਹ ਹੈ ਅਰਥ ਦਾ ਸੈਂਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਹੈਗਾ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਲੈਸ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ n ਦੀ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ f ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹਾਈਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾਇਆ f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਫੋਰਸ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, नेक्स्ट इंपोर्टेंट सब तो ज्यादा इंपोर्टेंट है
What is the value of G on moon? Gravitation on the moon is 1/6 of the earth. पेपर ते सब तो ज्यादा न्यूमेरिकल सब तो ज्यादा एग्जाम रिपीट इन्हां विचों ही होया होया है। ठीक है जी, एक होया आ चीज़ां मैक्सिमम कितने मिनिमम कितने ते व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G एट द मून बिकॉज एंड तो आपां फिर एक और नवा टॉपिक बनेगा जिन्हों आपां कहने न्यूमेरिकल। मान लो अर्थ ते वेट 60 किलोग्राम है, जे अर्थ ते वेट 60 किलोग्राम है ता मून ते कितना होएगा, तो उनका कितना हो जाएगा 1/6 60 का कितना 10 किलोग्राम। मान लो आप अपनी एग्जांपल ही लइए अपना अर्थ ते वेट है 60 किलो का, जे आप होके आइए मून ते तो उत्ते जे आप आपदा निकालिए वेट उत्ते कितना बनेगा 10 बिकॉज अर्थ दी अट्रैक्शन इत्थे हायर है एज कंपेयर टू मून है। नेक्स्ट तानू कहता आउटर स्पेस अर्थ दे बाहर भी जी दी वैल्यू कुछ भी नहीं हुंदी। लास्ट जे आपा मान लो अर्थ है अपने को अर्थ दे ऊपर या उनके अंदर वालों आइए तो जेडी वैल्यू जी दी की करती हमेशा डिक्रीज हो जाती है। तो तुसी बच्चों इहदा स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। इंपोर्टेंट मैं तानू इत्थे टिक मार्क हो गए ने आ इंपोर्टेंट ने एग्जाम दे विच। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज फ्री फॉल की हुंदा है, मतलब इहो जिहा ऑब्जेक्ट जो सिर्फ which is only under the effect of gravity of earth मतलब सिर्फ अर्थ दे अट्रैक्शन दे विच वल ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ फ्री fall मतलब ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ नीचे आवे किसी कोई भी आउटसाइड होर एक्सटर्नल फोर्स ना लगी होवे। अर्थ दी ਜਿਹੜੀ अट्रैक्शन है ਵੇਖੋ एंड वल की हो रहा है, जे कोई आदमी हवा च आ रहा है तो मतलब वो की है अपने आप अर्थ वाल ਨੂੰ ਆਏਗਾ नीचे एंड ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल। ठीक है जी, so an object is said to be in free fall motion if it is only under the effect of gravity of earth। अर्थ दी अट्रैक्शन दे विच सिर्फ रहेगा तो उन्हें कहांगे फ्री फॉल। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आंदा है एस्केप वेलोसिटी की हुंदी है, तो एस्केप वेलोसिटी हुंदी है वेलोसिटी ਇਹੋ जी वेलोसिटी दे नाल अगर किसी ऑब्जेक्ट नु आपां ऊपर वाल नु फेंकीए ताकि वो अर्थ तो ही आउटसाइड निकल जाए ते अर्थ ते फिर आज तो बाद वो आपां नु विखे ना मतलब इट नेवर comes back, so it is the velocity with which the object is thrown such that it will never came back to the earth। तो देखो ये चीज बहुत आपको अच्छी लगेगी, ਤੁਹਾਡੇ से एक अजूबा भी हो गया कि जे मैं किसी भी चीज नु जे आपा नु ही मान लो एक इंसान नु कोई चीज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दी स्पीड नाल जे आपा किसी चीज नु ऊपर हवा वाल नु फेंकीए तो वो आज तो बाद अर्थ तो ही अलविदा हो जाएगा। अर्थ ते वो आपा नु आज तो बाद कदे भी विखेगा ही नहीं। ठीक है जी, वो सीधा आ जाएगा स्पेस दे विच। तानू पता है स्पेस दे विच ना कोई अट्रैक्शन ना कोई वो उत्थे लंबिया रहेगा मतलब अर्थ तो बाहर। जे तानू किसी चीज ते इन्ना कोई खुंदक आंदी है तुसी आंदे कि आज तो बाद सानू विखे ही ना, तुसी उस नु की करना है सिर्फ 11.2 किलोमीटर हर सेकंड की स्पीड नाल की करना है हवा विच फेंकना, तानू वो चीज अर्थ ते नहीं विखेगी। तो एग्जाम में तानू आंदा एस्केप वेलोसिटी की हुंदा है, देखो इंग्लिश दा ये अक्षर है एन मतलब हुंदा है निकलना। ठीक है जी, अर्थ तो एज ही स्पीड जिंदे नाल आप किसी ऑब्जेक्ट नु फेंकीए तो अर्थ तो निकल जे नु कहने एस्केप वेलोसिटी। तो अर्थ दे तानू एग्जाम में चाहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ, तो उनका आंसर आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो जे मैं कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑन द मून तो आएगा 2.38 किलोमीटर पर सेकंड 2.38 या 11.2 तुसी याद कर लो। एनु जदों 1/6 नाल की करोगे डिवाइड तानू आपने आंसर मिल जाएगा इतना अप्रोक्सीमेट आंसर है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट एक टॉपिक अगे भी आ गया है एरकी भी आ रहा है क्यों ये टॉपिक आ वाला है दैट इज नोन एज वेट। ए किंदे तो रिलेटेड है जी तो बिकॉज़ तानू अगे भी सिखाया सी ए किंदे को होना है इट इज इक्वल्स टू m into g।
ठीक है जी। ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ weight on earth is this, what is the weight on the moon। ਤਾਂ ਦੇਖੋ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, it will always remain fixed। ठीक है जी। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ g ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, weight is dependent upon g। g बोले तो acceleration due to gravity। so again अपने आ रहा है what is the difference between mass and weight। mass की ਹੁੰਦਾ है कितना किसी ऑब्जेक्ट दे विच कोई चीज हैगी है, it is known as quantity of matter contained in an object। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ weight ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ अगर कोई चीज एग्जिस्ट हो रही है, कोई छोटे तो छोटा इलेक्ट्रॉन है या छोटा छोटा पार्टिकल है, उनका भी कुछ ना कुछ मास होता है। सो मास कैन नेवर बी जीरो बट वेट कैन बी जीरो। हुण इहदा मतलब की होया, वेट उत्थे जीरो जिथे वैल्यू ऑफ जी जीरो हो जाएगी। तुहानू ने सिखाया जेड़ा जी दी वैल्यू इज जीरो किथे किथे आउटर स्पेस विच या एट द सेंटर ऑफ अर्थ। और मास किसी भी चीज ते डिपेंडेंट नहीं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट जेड़ा वेट है वो किने डिपेंड है जी ते, जेड़ा जेड़ा अपने को जी है ओन दी लोकेशन वाइज की हुंदा है अलग-अलग आंसर आंदे। इस करके कि ये इट इज डिपेंडेंट ऑन जी, तो मतलब क्या हुआ, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट चीज अपने को आ रही है, मास डज नॉट चेंज विद लोकेशन। मास दी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, वेट दी वैल्यू चेंजेस विद चेंज इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। लास्ट मास नु किंदे केड़े इंस्ट्रूमेंट नाल निकालदे हैं, दा आंसर है बीम बैलेंस ते वेट नु स्प्रिंग बैलेंस दे नाल। ए एंदे तुसी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट on आ गया टॉपिक दैट इज प्रेशर की हुंदा है। ये हुंदा है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। किसी ऑब्जेक्ट ते आपा कितनी फोर्स अप्लाई कीती ते अपना ते उनदे विच जिन्ना सरफेस आपस में अटैच हो रहा है। मतलब मान लो आ कोई चीज सी, मैं इहदे ते आपदे हाथ, ए मेरा हाथ दा इन्ना हिस्सा इहदे ते लगया तां कितनी मेरी फोर्स लगी है इहदे ते आ वाला एरिया इहनू कहांगे आपां फोर्स अपॉन एरिया नू कहांगे प्रेशर। ठीक है जी। प्रेशर इज नोन एज फोर्स पर यूनिट एरिया। On what are the SI units of pressure? तो तानू पता है फोर्स दे न्यूटन हुंदे है, एरिया दे L into B या L into L जो भी होता है वो होता है मीटर का स्क्वायर। तो बन गए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट एंड एक अनदर इंपॉर्टेंट नेम है जिन्हों आप कहने हैं पास्कल। कुछ बच्चे सोच गए होंगे सर इंग्लिश एक अक्षर होता है जिन्हों आप कहने हैं रास्कल, तुसी उसको याद रख सकते हो। आर नु की करो इन्ना को हटा दो, उन्होंने बन जाएगा इट इज नोन एज पास्कल। पीए नाल लिखते हैं। नेक्स्ट हुण इत्थे इंपोर्टेंट एग्जाम विच आएगा आ वाले जेड़ा इंदा रिलेशन है एंदे उत्ते एप्लीकेशंस कि जिन्ना अपना एरिया हाई होएगा उन्ना जेड़ा पी दी वैल्यू है, पी बोले तो प्रेशर, ओ की लगेगा घट लगूगा। इस करके जे मान लो जेड़ा अपने ऊंट हुंदा है, ऊंट दी इस्तेमाल कीता रेगिस्तान दे विच, क्यों जे आपां होके आने दा अपना जेड़ा फुट हुंदा उंदा एरिया की है निक्का जा एरिया बनता है। जे एरिया की वैल्यू घट है तो अपना जो शू है वो अंदर रेत विच आ रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। बट ऊंट का एरिया वड्डा, एरिया इंक्रीज हो गया तो जेड़ा पी की वैल्यू की करनी घट जाएगी। तो ऐदा ही तुहानू कुछ होर एग्जाम्पल आंदियां ने, जिवें अजकल दे जेड़े स्कूल दे जेड़ा टैग हुंदा है बच्चों का, स्ट्रिप जिहड़ियां हुंदियां उहदे जेहड़े हैंडल हुंदे ओह कहंदे ने अजकल एडे वड्डे वड्डे आंदे ने, क्यों, एरिया वध जाएगा तो उन्हां दे शोल्डर्स ते घट लगेगा प्रेशर। अगे निक्के हुंदे आपे तो औखे आंदे सी, उदों निक्के निक्के इन्ने निक्के हुंदे सी, आपा औखा लगदा सी। ठीक है, जिन्ना एरिया आपा इंक्रीज हो जाएगा उन्ना की लगेगा घट प्रेशर है। ठीक है जी। नेक्स्ट आने को अपने को आंदा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो मैं तुहानू सिर्फ उन्नी चीज समझा रहा जिहड़ी एग्जाम में आ सकती है, इस तो अलावा होर भी है कुछ, बट वो एग्जाम में नहीं आती, एग्जाम में सिर्फ एना कुछ ना कुछ आएगा। हुण तुसीं कहंदे याद की करना एक वर्ड सिर्फ। हुण तुहाडे कोल एक न्यू अक्षर आ गया जिन्हों आप कहने अप थ्रस्ट, उनका मतलब उनका एक और नाम है जिन्हों आप कहने हाइट फोर्स।
मतलब फोर्स ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਪ ਥਰਸਟ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਇੰਟ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ मान लो आ ऊपर कोई तक है लिक्विड अगे इत्थे तक सी कोई ऑब्जेक्ट विच रखिया हुण ऑब्जेक्ट कोई ना भी हैवी होएगा जो हैवी होएगा तो ऊपर नु आएगा ते एंड द आर्किमिडीज ने की क्या सी जिन्ना द व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस जिन्ना H2O आउटसाइड निकलेगा वो किंदे को होएगा इट इज इक्वल्स टू जिन्नी एंदे ते अपवर्ड फोर्स लगदी है जिन्नी अपवर्ड फोर्स ऑब्जेक्ट ते लगेगी ओने अमाउंट ऑन द इक्विवेलेंट या ओने अमाउंट दा लिक्विड आउटसाइड बाहर नु डिगेगा। ये अपने क्या सी आर्किमिडियन अंकल है इसका नाम बन गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड अपन की कहांगे हायंट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। सिर्फ एक अक्षर याद करना है जिन्ना एक्स्ट्रा लिक्विड बाहर आएगा वो किंदे को लगेगा जिन्नी एंदे ते अपवर्ड नु फोर्स लगदी है दैट्स इट। ठीक है ये है अपना आर्किमिडियन प्रिंसिपल। नेक्स्ट अपने को दो छोटे टॉपिक आंदे हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है जिन्हों पर कहने हैं डेंसिटी मतलब वो कहती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। और मास दे ऐसे यूनिट किलोग्राम होंदे है वॉल्यूम अपन निकालने मीटर द होल क्यूब कहंदे बन गए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। नेक्स्ट एंदे जे ताने एंदे तक ही होंदे ने एसआई यूनिट्स होंदे है पर पेपर एग्जाम में कदे-कदे आ जांदा है रिलेटिव डेंसिटी। ओंदा मतलब है किसी भी सब्सटेंस दी आपां निकाल रहे हैं डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हर एक ऑब्जेक्ट दी जे आपा एज कंपेयर टू किंदे निकालिए वाटर दे तो उन्होंने आपा कहने हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है जी। तो ऊपर ऑन दे सब्सटेंस दी कितनी डेंसिटी है नीचे H2O बोले तो वाटर दी। ठीक है जी। हुण देखो ऊपर भी सेम चीज नीचे भी सेम चीज तो एंदा कुछ भी अपने कोल ऐसा यूनिट नहीं होएगा। ठीक है जी। तो आज इंपॉर्टेंट है याद रखनी है जी। ऑन एग्जाम से इंपॉर्टेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर उसे लिखी नहीं लिख लो 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है जी। या आप सिंपल याद रखना तो आ भी याद कर सकते हो एनु आप 1000 भी अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं जे आप मैंने लिखा ग्राम पर सेंटीमीटर होल क्यूब दे विच वो बनेगी 1। ठीक है जी। ये बनती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। अप्रोक्सीमेट आप 1000 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपने को आज दा लास्ट टॉपिक बचदा है वो है कंडीशंस फॉर फ्लोटेशन। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਬਜੈਕਟ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ ਅੱਧਾ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ देखो आगे ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ upward force exerted by the liquid on the object is called buoyant force या ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ अप thrust ऊपर ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪ। ठीक है जी नाल लग जाता है जे ता ओ जिन्ना कोई ऑब्जेक्ट है उनदे वेट दे इक्वल आएगी तो ऑब्जेक्ट की रहेगा ऑब्जेक्ट विल फ्लोट मतलब ऊपर ऊपर रहेगा लिक्विड दे रुक जाएगा। जे निचली फोर्स हैवी हुई मतलब इफ buoyant force is more than the weight of the object moves up। ऑब्जेक्ट अंदर नु आप रखेंगे अपने आप ऊपर आ जाएगा।
ते लास्ट है जे अपवर्ड फोर्स घट है मतलब ऑब्जेक्ट हैवी है तो ऑब्जेक्ट की करेगा सिंक। पेपर लिखा है सिंक, सिंक का मतलब डूब जाना। ठीक है जी। जे अपवर्ड फोर्स आई है तो एक ही करेगा इट विल फ्लोट। जे इक्वल है तो कहेंगे सबमर्ज्ड। इंग्लिश नाल लिख रहा है जो एग्जाम में आ सकता है। सबमर्ज्ड मतलब अद्धा डुबया, ऐतो वाला अद्धा ऊपर अद्धा नीचे। ठीक है जी। तो यह चीज हुंदी कित्थे है जदों आपां रोज सवेरे नहान लगदे हां तो जेड़ा अपने उत्ते की हुंदा है अपने ते हुंदा है अंग हुंदा है। जदों मर्द नूं आपां किसे भी अपन जो भी चीज नाल आपां नहाने उहदे विच सटदे हां तां जो हैवी होवे जदों लिक्विड होवे तां अंदर वड़ जांदा है, जे आपां उत्ते रखदे तो ऊपर ऊपर रहिंदा है बिकॉज ऑन दा वेट अपवर्ड नालों घट हुंदा है। ठीक है जी। तो ये अपने कोल किसी कंडीशन सी ते ये सी अपना मित्रों आज दा चैप्टर जिंदा नाम सी लॉज ऑफ ग्रेविटेशन या सिंपल ग्रेविटेशन। इस तो अलावा अपने कोल एक चीज होर आज मिस हो गई है वो मैं अगले लेक्चर लेके आवांगा जिन्हों आपां कहने आ लॉज हुंदे जिन्हों आपां कहने आ कैपलर दे लॉ, कैपलर दे लॉज हुंदे है। ठीक है जी। आपां हुणे रख लियो। ठीक है जी। उहदे च आपां कुछ ज्यादा कुछ तो करना ही नहीं। चलो दोस्तों अपन करते कैपलर्स दे लॉ। मेरे को लिखे नहीं हुए मैं हुणे लिखवा देना। कैपलर्स दे तीन लॉ सी। ठीक है जी। एक साइंटिस्ट सी जिंदा नाम सी कैपलर। उन्हें की कीता जेड़े अपने अर्थ वगैरह हो गई या इहो जे होर प्लैनेट्स हो गए ये जो अर्थ दे आले दुआले की करदे ने रोटेट हुंदे है रिवॉल्व हुंदे है तां उहदे बारे की कीती सी ने अच्छे नाल रिसर्च। तां इहनूं आपां कहने आनूं आपां एक और नाम आने लॉ ऑफ प्लैनेट मोशन। ठीक है जी। उन्हें एंदा एक और नेम भी है। तो फर्स्ट लॉ एंदा आया सी ओ क्या सी उन्हें आपन पता है अर्थ जड़ी है उस सन दे आले दुआले की करदी है इट मूव्स इन एलिप्टिकल पाथ, एलिप्स वाला पाथ, अंडे वाली शेप दे विच। ठीक है जी। एलिप्टिकल ऑर्बिट दे विच। बट आपन पता है जेड़े एलिप्स हुंदे है उनदे दो की हुंदे ने इट हैज टू फोकस। जिवें आपां गल करने स्फीयर दी या आपां गल करते हैं एक सर्कल दी उनदा एक की हुंदा है विचकार सेंटर हुंदा है। एवें जेड़ा एलिप्स हुंदा है उनदे विच की हुंदा है उनदे विच अपने कोल एलिप्स दे विच की हुंदा है अपने कोल एलिप्स दे विच दो फोकस हुंदे है। तो उन्हें क्या सी जेड़ा की अर्थ है इट रोटेट्स अराउंड द सन एट वन ऑफ द फोकस मतलब किसी एक फोकस ते सन हुंदा है। चाहे तुसी एनू मान लो चाहे एनू मान लो। ऐसे करके अपने कोल की बंदे ने वी हैव डिफरेंट सीजन्स ऑफ द अर्थ। कदे विंटर हो जाती है कदे समर हो जाती स्प्रिंग हो जाती है वो ऐदा ही हुंदा है बिकॉज ये मान लिया मैं साफ साफ एक लिखन लग गया जी। मान लो आ है अपने कोल मान लो इत्थे मान ले ये अपने इत्थे सन है इत्थे नहीं है तां अर्थ जदों इत्थे आवेगी तां की है अर्थ ते सन दे विच की अंतर घट गया मतलब एना तक जदों रहेगा उदों की रहेगी अपने कोल आ जेड़ा होने वाला अपने कोल मौसम इहनूं कहने आ समर मौसम। ठीक है जी। ते जदों ये इत्थे बैठे सन ते इत्थे है ते अर्थ जदों इधर ऐसे एरिया च आएगी इन्ने हिस्से च उदों अपने की हो जाती है विंटर हो जाती है। ठीक है जी। मेन तो ही होंगे ने या विंटर या समर। ठीक है जी। तो वो ऐसे वजह नाल है बिकॉज उन्हें क्या सी कि जेड़ा सन है वो किसी एक फोकस ते होएगा जदों सन की हुंदा है या अर्थ की ने उनदे आले दुआले रोटेट होंगे इन एलिप्टिकल पाथ। ये चीज इंपोर्टेंट एलिप्टिकल मतलब होता है अंडे वाली शेप। ठीक है जी। तो ये सी अपना कैपलर दा पहला लॉ। हुण अपने कोल आ रहा है कैपलर दा सेकंड लॉ। कैपलर दा सेकंड लॉ अपने कोल हैगा सी वो सी अपने कोल इजी है बड़ा। वो कहंदा सी एरिया मान लो आ अपने कोल सूरज है ये अर्थ ने जो कहंदा जे इफ वी टेक सेम टी टी बोले तो टाइम
जे आप मान लो रख लीए कि 1 घंटे एरिया इन्ना आंदा है, वो कहता इधर भी एरिया पर निक्का लगेगा बट वो एरिया ने वो इक्वल होंगे। ठीक है जी, उन्हें आख्या सी कि एरिया विल रिमेन सेम इफ वी टेक सेम टाइम। कितना एरिया कोई अर्थ सन दे अर्थ या कोई होर प्लैनेट सन दे आले दुआले आएगा इन सेम स्पेसिफिक टाइम देन द एरिया इज इक्वल। मतलब मान लिया कि 1 महीने विच एरिया इनदे कोल आ गया 1000 मीटर आ गया। ठीक है जी, ते इधर मैंने ध्यान देने लगे 1 महीना अपन नूं ऐसा लग रहा कि एरिया निक्का है बट इनकी आ चीज हाईयर है, इस करके इनका जेड़ा एरिया है मतलब जे आप सेम टाइम लवांगे इधर भी 1 महीना ले लिया तो 1 महीने इधर भी आंसर 1000 ही आऊगा। तो इनका आंसर है एरिया स्वीप बाय द प्लैनेट्स अराउंड द सन विल रिमेन सेम इन सेम टाइम। लास्ट इनका लॉ जी आप कहने वो आपको बहुत ही इजी है सॉरी दोस्तों, उन्हें क्या सी कि जिन्ना ओनू किसी भी प्लैनेट नू सन दे आले दुआले जो घूमदा है जिन्ना ओनू टी लगदा है ओ की उन्हें क्या सी इट इज टी द स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर द क्यूब। मतलब मान लो आर कहते हैं, ठीक है जी, एनू अगे आन ते कितना समय लगूगा उनका होल स्क्वायर किंदे ते हुंदा डिपेंडेंट एंदा ते अर्थ ते सन दे विचकार दा डिस्टेंस जिन्हों आप कहने आर दा होल क्यूब। तो तुहानू एक होर समझा दिया, पहला ला सी कि जेड़ा प्लैनेट्स ने अर्थ दे आले दुआले किदे च घूमदे हैं फिक्स एलिप्टिकल ऑर्बिट विच, ते जेड़ा अपने को सन हुंदा वो किसी एक फोकस पे होएगा। सेकंड उन्हें क्या सी इन सेम टाइम एरिया विल बी इक्वल। लास्ट उन्हें क्या सी जिन्ना ओनू प्लैनेट नु टाइम लगदा है उनका होल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर द क्यूब। आर की हुंदा है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। जे अर्थ की गल हो रही तो अर्थ लवांगे, जे किसी होर प्लैनेट की गल हो रही तो उनका नाम लिखांगे। ठीक है जी, सो ये सी अपना आज दा टॉपिक जिन्हों आप कहने ग्रेविटेशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट वीडियो विच मैं दे की लेके आवांगा बेस्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर। ते मैनू उम्मीद है दोस्तों हले तक तुहाडा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ते मैनू उम्मीद है कि ये रिस्पॉन्स और इंक्रीज होएगा। इस करके जे तुहानू लेक्चर अच्छा लगे तो ज्यादा तो ज्यादा की करो लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल 24/7 एजुकेशन हब ताकि तुहानू न्यू अपडेट्स मिलते रहन। So दोस्तों, thank you so much. Meet you soon in the next lecture. Tata, see you, bye bye.